Hello bachcho, today we are going to discuss second type of permanent tissues, that is complex permanent tissues. Okay bachcho, so complex permanent, earlier I told you na ki there are two types of permanent tissues, complex permanent tissues and simple permanent tissues. Simple permanent tissues we have already discussed. So today we are going to start complex permanent tissues. And what is the characteristic feature of these tissues? That they are made up of more than one type of cells which work together as a unit. Okay, तो main thing क्या हो गई कि they are made up of one type of, not one type of cell, they are made up of many types of cell, that is more than one type of cells. So first feature क्या हो जाएगा? Made up of more than one type of cells and work together as a unit. Okay, this is the major difference between simple permanent tissue and complex permanent tissues. Okay, so what is the function of these tissue? These tissue help in transportation of organic materials like food and water and minerals. Okay, तो function क्या हो जाएगा इनका? Transportation of organic material, that is food in the form of sucrose, okay, and water and minerals. Okay bachcho, okay, because they are helpful in transportation. Due to these tissues transportation is taking place, so they are also known as conducting tissues or vascular tissues. Okay, so complex permanent tissues are the example of conductive tissues or vascular tissues. And due to this nature of complex tissue, which nature? Conduction of food and water. Due to this nature of conductive tissues or complex tissues, the complex plant कौन से? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, ओके, टेरिडोफाइट्स हैं, तो दे हैव देयर सर्वाइवल पॉसिबल in the terrestrial environment. Okay bachcho, so how many types of complex permanent tissues are present? There are two types of complex permanent tissues. What are those types? First one is xylem and second is phloem. Xylem water conducting tissue, mineral conducting tissue, and phloem food conducting tissue, means organic material is transported by the phloem and water and minerals are transported by the xylem. So one by one we will start. Okay bachcho, so let's start. Xylem. How many types of cells are present in xylem? They are, क्योंकि more than one type of cells है, तो they are made up of more than one type of cells. तो कौन कौन से cells हैं? Xylem consists of 4 types of cells called xylem elements. Okay, so there are 4 xylem elements. कौन कौन से हैं भाई वो 4 xylem elements? ट्रैकीड, ओके, ट्रैकीड एक नहीं होगी, बहुत सारी होंगी. दूसरी कौन सी हो जाएंगी? वेसल्स, ओके, और क्या हो सकते हैं? पैरेन्काइमा, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्योंकि जाइलम की है तो जाइलम पैरेन्काइमा, एंड फोर्थ हो जाएगा जाइलम फाइबर्स. ओके, फाइबर्स बोले तो लॉन्ग सेल्स. So these are 4 elements of xylem. अगर डायग्राम बनाए
तो डायग्राम के थ्रू हम कैसे ट्रैकिड और वेसल का डायग्राम तो बड़ा अच्छा सा बन जाएगा। लेट्स स्टार्ट टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ जाइलम। तो सबसे पहले ट्रैकिड्स का डायग्राम। तो ट्रैकिड्स आर कैसी सेल्स हैं? दे आर इलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल्स, ओके, and it is the element which involved in the conduction of water and minerals in gymnosperm। जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होंगे उनमें मेन कंडक्शन ऑफ वाटर कौन करेगा? ट्रैकिड्स करेंगे, बिकॉज वेसल्स आर एब्सेंट। ओके, जिम्नोस्पर्म्स में क्या होगा? वेसल्स आर एब्सेंट। तो अगर डायग्राम बनाए इसका तो कैसा दिखने वाला है? इलोंगेटेड सेल्स। तो ये इलोंगेटेड सेल्स बना ली हमने, ओके, लाइक दिस। और ये तो सेल वॉल हो गई, इसके अंदर एक और चीज़ होगी, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन, ओके। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम ट्रैकिड्स। पिट्स आर प्रेजेंट, तो पिट्स बना लेते हैं। यहाँ पर दिखाई देने के लिए पिट्स, ये रही, पिट्स आर प्रेजेंट। तो ये जैसे जैसे एंड्स पर कैसी हो जाएगी? टेपर्ड हो जाएगी, यानी कि नैरो हो जाएगी, ओके। एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स तो है ही हैं, और मेनली वाटर को कंडक्ट करेंगे वर्टिकली। और वेसल्स कैसी रहेंगी हमारी? वेसल्स के लिए बना लेते हैं डायग्राम। टेपर नहीं होंगी दोनों एंड्स पर, ओके। दोनों एंड्स पर क्या नहीं होंगी? दे विल नॉट टेपर एट बोथ एंड्स। और ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से। ये ओपन है, ल्यूमेन दिखाया जा रहा है, यानी कि एम्प्टी स्पेस जिसमें से पानी बहते हुए जाएगा, ओके। एंड दीज आर द पिट्स। पिट्स यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, बिकॉज यहाँ हम डबल लेयर पिट्स, दीज आर द पिट्स, ओके। यानी कि ये कैसी स्ट्रक्चर है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जैसे कि वाटर का पाइप होता है ना, जैसे आप गार्डन में वाटर डालते हो, तो वो वाला स्ट्रक्चर जो होगा दैट इज द ल्यूमेन, ओके। जो अंदर से कैसा होगा? हॉलो होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हो गई जाइलम की वेसल। और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इसको बोलेंगे परफोरेटेड प्लेट। परफोरेटेड प्लेट, ओके। सो दिस इज जाइलम वेसल which is absent in gymnosperm and this is जाइलम ट्रैकिड। तो ये डिफरेंस तो दिखाई दे रहा होगा आपको कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन दी जाइलम ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसल्स। और पैरेन्काइमा की बात करें तो पैरेन्काइमा कैसी दिखाई देने वाली है बच्चों? पैरेन्काइमा के लिए हम डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं। लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ओके। सेल वॉल इज प्रेजेंट, तो सेल वॉल भी प्रेजेंट कर दी। और ये रही सेपरेटेड सेल्स, ओके। एंड दिस इज न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस नहीं है बच्चों, ना ये न्यूक्लियस है, दीज आर पिट्स, ओके, गड्ढे गड्ढे जैसे। लेकिन ये क्या है इसके? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के साथ और क्या हो सकता है? वेरी गुड, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो प्रेजेंट। येलो कलर में साइटोप्लाज्म। एंड इसका लेबलिंग क्या हो जाएगा? जाइलम पैरेन्काइमा। फाइबर्स तो लॉन्ग ट्यूब्स आर देयर एंड दे ऑल्सो कंटेन पिट्स। तो फाइबर को बना लेते हैं जल्दी से। टेपर्ड एट बोथ एंड्स, डन। मेम्ब्रेन भी बना लेते हैं टू क्लियर द डिफरेंस। तो अगर इसको हमने मेम्ब्रेन मान लिया तो हम एक बाहर से लेयर बना देते हैं, इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू, ओके। एंड पिट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, तो लो जी पिट्स बना दी। तो इन दिस वे दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ जाइलम एंड दिस इज, यहाँ ले लेते हैं लेबलिंग के लिए, जाइलम। सो कीप दिस थिंग इन माइंड बच्चों कि इफ वी सी दीज 4 डायग्राम्स, ओके, कैसे? ऐसे। सो इफ वी सी दीज 4 डायग्राम्स, तो 1 2
three. These three are dead elements. Okay, only xylem parenchyma is living. तो यहाँ लिख देती हूँ मैं living. So xylem parenchyma is living, and this parenchyma works to two functions are performed by parenchyma. First, it stores food, and second, it helps in sideways conduction of water. Okay, sideways conduction of water. They are responsible for vertical conduction of water. Tracheids and vessels are responsible for vertical conduction of water and mineral, while parenchyma is responsible for sideways conduction of water as well as storage of food, and xylem fibers are responsible for providing strength to the tissue. Okay, and it means it is mainly supporting टिश्यू. गेटिंग कौन सा वाला सपोर्ट करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट करेगा. ओके, एंड नॉन लिविंग तो है ही. तो क्या कह सकते हैं कि इन जाइलम एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा ऑल जाइलम एलिमेंट्स आर डेड, वेदर दे आर ट्रैकीड्स, वेदर दे आर वेसल्स, वेदर दे आर जाइलम फाइबर्स, दे ऑल आर डेड. ओके, एंड जाइलम ट्रैकीड्स एंड वेसल्स कलेक्टिवली कॉल्ड हेडरोम. ये कई बार एनटीएससी में पूछा जाता है. ओके, एंड इसी में क्या होगा? रिंग्स प्रेजेंट होंगी. दैट रिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द काउंटिंग द नंबर ऑफ by counting the number of these rings. Which rings? Annual rings. We can find out the age of plant. Okay, plants की age को भी हम पता लगा सकते हैं by counting the number of these annual rings. Okay, so they are responsible to determine the age of plant. Okay, so I hope ki this tissue is clear in your mind, and now we are going to discuss phloem, but not in this video, in next video. Till then, bye bye.